Students, today we will discuss the ionic bond or electrovalent bond. So what is the meaning of ionic bond? Just see out. Ionic bond is a bond which is formed by loss or gain of electron. Clear to all of you? Whenever there is a loss or gain of electron between the two atoms, the bond formed is said to be the ionic bond. This is also said to be the electrovalent bond. Clear? So in today's topic, what we will do, we'll simply do the mechanism of formation of ionic bond. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज. But before the mechanism of formation of ionic bond, beta, this bond is basically formed by loss or gain of electron. So we must know कि a particular atom जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव टूल अगर हम बात करें तो एटम जो है वो अपनी वैलेंस शेल में इट ट्राई टू एक्वायर द 8 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? बट फॉर इट हमें बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमें डायरेक्टली टेबल इन विच विल विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और गेन करेगा. सो पहली चीज़, इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं इसको रब करता हूँ. हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे. सिंस दिस इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी. Now what is electrovalency? It is simply the number of electron lost or gained during formation of ionic bond. So just see out, I simply draw the electrovalencies here. This is group number first, then group number second, then 13th, 14th, 15th, 16th and 17th. ग्रुप नंबर 1 विल हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप 13 3, 14 4, 15th 5, 16th 6 and 17th group has 7 valence electron. Now electrovalency, EV I will write. For valence electron 1 the electrovalency is +1. For valence electron 2 electrovalency is +2. For valence electron 3 it is +3. valence electron 4 +4. 4 के बाद हमें 8 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो 5 - 8 इट इज़ -3 फॉर 15th ग्रुप, फॉर 16th -2, फॉर 17th -1. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोवैलेंसी? इट इज सिंपली द वैलेंसी दैट वी हैव डन. अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है तो वो डायरेक्टली +1 स्टेट में आएगा. मीन्स इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. मीनिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत ही नहीं है. बाय सीइंग द ग्रुप नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है. मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन का वो लॉस करेगा या गेन करेगा. अब ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट्स आपके आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. सो ये सभी इलेक्ट्रॉन इन आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे +1 स्टेट. नाउ इन द सेकेंड ग्रुप वी आर हैविंग द एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. These all they will lose 2 electron. Now group 13 boron, aluminium, gallium, indium and thallium +3. 14th carbon, silicon, germanium, tin and lead +4. Then 15th nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth -3. 16th oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium -2. And group 17 -1 fluorine, chlorine, bromine, iodine and एस्टेटाइन. दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो. वहाँ पर मैंने आई हैव टोल्ड यू दैट वैलेंसी. अब वैलेंसी यहाँ पे क्या हो गई है? इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड. नाउ जस्ट सी आउट द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. मैकेनिज्म of formation of ionic bond. In this mechanism
beta we are having 3 steps. Step number 1 is the formation of cation. Step number 2 is formation of anion, and step number 3 is simply, what will I say, the formation of ionic bond between cation and anion. So basically you have to learn the 3 steps. Step number 1 is very clear to you. Formation of cation means positive ion. This is formed by the loss of electron. Then formation of anion, negative ion. This is formed by the gain of electron. And the formation of ionic bond between cation and anion. ये क्या होता है बेटा, सपोज A पॉजिटिव cation है और B नेगेटिव anion है. These positive and negative ion, they will attract each other and form the ionic compound AB. So जो आपका ionic compound है बेसिकली वो क्या है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ध्यान रखिएगा, अगर हम आयनिक बॉन्ड को फोर्स की टर्म में डिफाइन करें, सो हमारी जो डेफिनेशन आएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आयनिक बॉन्ड, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the cation and anion. So चलिए let's come back to the topic. अभी we'll do some examples. Steps must be clear to you. So first example जो हम करेंगे, we'll take sodium and chlorine. First example, between the sodium and chlorine we will form the ionic compound. So step number 1 is formation of cation. Now beta, all of you know cation out of sodium and chlorine, sodium will form the cation और +1 means ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा. बी क्लियर. सो सोडियम विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन. ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ इस टेबल को ध्यान रख के. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर ये टेबल लर्न होगी तो विदाउट एटॉमिक नंबर आप डायरेक्टली आयनिक कंपाउंड बना सकते हो. नाउ सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन. Now for this chlorine belong to 17th group and they show -1 oxidation state, और सॉरी -1 इलेक्ट्रोवैलेंसी. ऑक्सीजन स्टेट भी इसको बोलते हैं, फर्दर डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में. सो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है इसकी, -1 या वैलेंसी -1 है. सो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू Cl नेगेटिव आयन. नाउ द थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. Now see, this Na positive ion attract the Cl negative ion. Clear? अब देख लीजिए चार्जेस आपके इक्वल होनी चाहिए. दिस इज +1, दिस इज -1. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अब क्या होता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे देन व्हाट हैपन्स, यहां पर Le स्टैंड्स फॉर लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, जब भी आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा मींस द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, कुछ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में रिलीज होती है. सम एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग. क्यों? क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दे विल हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, और यही डिक्रीज्ड एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लैटिस एनर्जी. क्लियर? तो फिर से देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, अट्रैक्शन से व्हाट हैपन्स, देयर एनर्जी डिक्रीजेस and this energy will release in the surrounding in the form of lattice enthalpy. So whenever the ionic compound is formed, आपको साथ में शो करना है Le lattice enthalpy. Lattice enthalpy का डिटेल में हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो अभी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. सिर्फ इतना कि lattice enthalpy क्या है, whenever the positive and negative ion attract each other, they will form the ionic bond. Some of the energy is released in the surrounding, that is said to be the lattice enthalpy. So this we have done the first mechanism of formation of ionic compound between the sodium and chlorine. Now see the students, second example if I will take,
between aluminium and chlorine. Second example, I will take aluminium and chlorine. Now again the three steps. Step number 1, formation of cation. Now देखिए aluminium जो है ये ग्रुप नंबर 13th में है and it shows +3 electrovalency. So aluminium will convert into Al3 positive plus 3 electrons are lost. Now step number 2, formation of anion. Now chlorine it belongs to 17th group और बेटा यहाँ जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो आपकी -1 है. So what will I do? Chlorine plus electron Cl minus. Now the step number 3, formation of ionic bond. Now this Al3 positive plus Cl negative. अब देखिए बेटा Al3 positive plus Cl negative. Now see what happens. अब ये आपके चार्जेस इक्वल नहीं है. सो यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर -1. सो व्हाट विल आई डू? आई विल डू 3. अब 3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 3 नेगेटिव, तो चार्जेस मस्ट बी इक्वल. नाउ फॉर्मूला जो बनेगा बेटा AlCl3 with the release of Le lattice enthalpy. So this is the mechanism of formation of ionic bond between aluminium and chlorine. And now the last example that we will discuss. Third example, between aluminium and oxygen. So again the step number 1 is formation of cation. So beta aluminium belongs to group number 13. It will have the electrovalency +3. So aluminium will convert into Al +3 with the loss of 3 electrons. Now step number 2 is the formation of anion. Now oxygen जो है it belongs to group number 16 having the electrovalency -2. So oxygen will gain 2 electron and it convert into O2 negative. Now step number 3, formation of ionic bond. Now see this Al3 positive plus O2 नेगेटिव. अब देखिए बेटा इनके चार्जेस इक्वल नहीं है. सो आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से. नाउ चार्जेस आर 2 3 +6, 3 2 -6. दीज आर इक्वलाइज्ड. सो पहले आपको क्या करना है? चार्ज इक्वलाइज करना है. नाउ द फॉर्मूला इज Al2O3 प्लस Le लैटिस एनर्जी. सो ये हमने किया मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी the factors governing the formation of ionic bond. Factors governing the formation of ionic bond. Now see the students, during the formation of ionic bond हमारे 3 मेन स्टेप्स थे जो आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ cation. Second we have done formation of anion. और थर्ड था बेटा रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी इट वाज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग. सो यहाँ पर देखिए बेटा, आप जो आपका कैटायन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी से जल्दी हो टू बिकम ईजियर, सो देयर मस्ट बी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी. पहला फैक्टर आपको लर्न करना है कि जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और उतना जल्दी आपका कैटायन बनेगा. सेकेंड, formation of anion we know it is formed by the gain of electron. So electron के gain के लिए we must have
हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो बेटा जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, क्लियर, उतनी जल्दी एनायन बनेगा और उतना ही आपका जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो सेकंड जो आपका फैक्टर है दैट इज यू मस्ट हैव द हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड इज रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी। जो लैटिस एनर्जी है ये इसका एग्जिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम एयर इट कम्स, दिस लैटिस एनर्जी कम्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, क्लियर। सो थर्ड कंडीशन मैं कहूँगा देयर मस्ट बी हाई लैटिस एंथैल्पी। ऐसा क्यों बेटा, अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी सो यू कैन से मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, सो लेस इज द एनर्जी लेफ्ट। ध्यान रखिएगा उतनी एनर्जी कम बचेगी। फिर से देखिए, अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड की काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी सराउंडिंग में, तो उसके पास बहुत कम एनर्जी बचेगी, और जितनी एनर्जी कम होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। सो मोर इज़ द स्टेबिलिटी। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों का रीज़न क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। वन मोर थिंग, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ईजियर एंड अर्लियर। High electron gain enthalpy or electron affinity leads to the formation of anion easier and earlier. High lattice enthalpy leads to the stability of ionic compound. Means जितनी ज़्यादा lattice enthalpy होगी आपका ionic compound उतना ही stable होगा. So these we have done the factor governing the formation of ionic bond. Now we'll discuss one more thing here, that is ionic character in ionic compounds. Very important thing. आयनिक करेक्टर हम कोवलेंट कंपाउंड में भी स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कि मैं आपको आई विल गिव यू टू कंपाउंड्स ऑफ द आउट ऑफ देम विच इज मोस्ट आयनिक और विच इज लीस्ट आयनिक. सो हेयर वी विल स्टडी द आयोनिक करेक्टर in ionic compounds. So just see out the students very carefully. Suppose this is an ionic compound A positive and B negative. Clear? So यहाँ पर जो बेटा ionic character है it is directly proportional to, ध्यान से देखिए, ये जो A positive ion है it is positive ion is formed by the metal, और जो negative ion है बेटा it is formed by the non metal. क्लियर? तो आपका जो कैटायन है जितना ज़्यादा मेटेलिक होगा और नॉन मेटल में जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा उतना ही आपका कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होगा. सो आई विल से आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक करेक्टर ऑफ पॉजिटिव आयन, और यू कैन से कैटायन एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एनायन. सो शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड का जो आयनिक करेक्टर है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MC मेटेलिक करेक्टर ऑफ कैटायंस कॉमा नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एनायंस. ये पॉइंट अपने माइंड में रखिए. अब हमने इन द चैप्टर 3 काफ़ी डिटेल में किया था मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर. सो वहाँ से एक पॉइंट हम लेके चलते हैं कि जो मेटेलिक करेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, वेयर एज नॉन मेटेलिक करेक्टर की अगर बात की जाए, सो नॉन मेटेलिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन. सो बेटा इस फैक्टर को हम थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं कि जो आयनिक करेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू size of cation and inversely proportional to size of anion. हम इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं. सो आई विल राइट वन मोर थिंग हेयर. ये तो एक चीज़ होगी बेटा हमारा. अब अगर और शॉर्ट में करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन. ये कहाँ से आया? क्योंकि आपका जो मेटेलिक करेक्टर है वो कैटायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो एनायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बता भी देता हूँ, देखिए कैसे. जितना ज़्यादा आपका कैटायन का साइज होगा
उतना आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होगा, उस पर न्यूक्लियस की फोर्स कम होगी, उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और उतना ही ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो जितना आपका एटम एनायन का साइज छोटा होगा, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा, उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो उसके जो एडिशन के चांसेस है वो ज़्यादा होंगे और नॉन मेटेलिक करेक्टर भी ज़्यादा। सो इसको शॉर्ट में अगर हम करें, हम डायरेक्टली जो फैक्टर हम अप्लाई करेंगे, दैट आयोनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। बेटा इसको बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कीजिएगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू size of anion. Keep this thing in your mind. So we'll do one question now. The question is, which is most ionic? Clear? So this is, I'll explain. First is NaCl or NaBr. NaCl or NaBr. See out the student, सोडियम पॉजिटिव आयन तो दोनों में सेम है, सो हमें क्लोरीन और ब्रोमीन में चूज करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीज आर नेगेटिव आयंस। सो हमने स्टडी किया था अभी कि जो आयनिक करेक्टर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नेगेटिव आयन और एनायन। अब F नेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में साइज ऑफ Br नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। क्लियरली इंडिकेटेड हुआ यहाँ से। तो Br नेगेटिव का साइज ज़्यादा होगा, देयरफॉर उसमें आयनिक करेक्टर NaBr में क्या हो जाएगा? लेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट विल आई राइट? फिर से देखिए, Br नेगेटिव का साइज ज़्यादा है, ड्यू टू विच NaBr हैज़ लेस आयनिक करेक्टर। तो ज़्यादा किस में हुआ? NaCl में। NaCl हैज़ मोर आयनिक करेक्टर। रीजन बिल्कुल क्लियर। क्लोरीन और ब्रोमीन में जो Cl नेगेटिव है, द साइज ऑफ Cl नेगेटिव इज लेस देन Br नेगेटिव। साइज कम होगा तो आयनिक करेक्टर आपका ज़्यादा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और साइज कम होने से आपको पता है कि हम डायरेक्टली बात किसकी करते हैं? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर। हम ये भी कह सकते हैं कि आप इसको मेटेलिक या नॉन मेटेलिक करेक्टर से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट क्योंकि मेटल आपका सेम था तो हमने इसको मेटेलिक करेक्टर से एक्सप्लेन नहीं किया। हमने नेगेटिव आयन लिया और नेगेटिव आयन में हमने स्टडी किया कि जो आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर, देखिए मैंने लिख भी रखा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन होता है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, Cl नेगेटिव का साइज कम था तो उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा हुआ, आयनिक करेक्टर भी ज़्यादा। बट शॉर्ट में क्योंकि बात साइज की चल रही है तो साइज से डिस्कस करेंगे। तो साइज में आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल हियर, NaCl और KCl। NaCl और KCl। अब यहाँ पर देखिए बेटा, नेगेटिव आयन आपका सेम है तो उससे हम काम नहीं करेंगे। कैटायन आपका डिफरेंट है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। नाउ वी नो दैट आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। सो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं दोनों। यहाँ पर भी देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो साइज ऑफ K पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। तो पोटेशियम का साइज बड़ा है, देयरफॉर जो KCl होगा इट इज मोर आयोनिक। सो आई विल राइट सिंपली दैट KCl इज मोर आयोनिक देन NaCl because size of K पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। और K पॉजिटिव का साइज ज़्यादा है, इसी वजह से वी कैन से that metallic character of K positive is greater than Na positive, या पॉजिटिव हटा दीजिए, metallic character of potassium is greater than sodium। सो बेटा ये आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या स्टडी किया, मैं क्लियर कर दूं। हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी स्टडी किया, मैकेनिज्म किया, कैसे आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन हमने किया कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं, और इन द लास्ट हमने 2 आयनिक कंपाउंड में से विच इज मोस्ट आयनिक ये हमने फाइंड आउट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द
ionic bond regarding its formation, factors governing, clear to all of you, and finally the ionic character. So that's all.